The legend of Lachit Borphukan. যদি প্ৰকৃত নৰ্থ ইষ্ট অসমীয়া সন্তান হয় তেন্তে কাইণ্ডলি ভিডিঅ' স্কিপ নকৰিব। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আপোনাৰো গাৰ তেজ গৰম হৈ উঠিব যদি আপুনি প্ৰকৃত অসমীয়া হয়। औरंगजेब को उन्होंने एक मात्र उन्होंने हराया। यही गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। एक मात्र नहीं, औरंगजेब को लाचित बरफुकन ने भी हराया जो आसाम से थे। शिवाजी ने हराया, लाचित बरफुकन ने भी हराया। यही जानकारी असम सरकार देना चाहिए। कि राजस्थान में रहते जयपुर में, हमने जहाँ तक की नॉलेज है हमारी राजस्थान कॉलेज से पढ़ता हूँ। अच्छा, हाँ मैं समझ गया हाँ, ताकि यही है असम गवर्नमेंट। छत्रपति शिवाजी कौन है आपको पता है? जी, महाराष्ट्र के शासक थे। हाँ, उनकी माँ का नाम जीजाबाई था। औरंगजेब से जंग हुई थी उनकी। तो आपको बहुत कुछ पता है, हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानकारी आप रखते हैं। लाचित बरफुकन के बारे में जानते हैं आप? लाचित बरफुकन के बारे में पता है आपको? ना। लाचित बरफुकन के बारे में सुना है आपने? नहीं। तो आपसे जानना चाहेंगे, लाचित बरफुकन का नाम आपने सुना है कभी? लाचित बरफुकन नहीं। लाचित बरफुकन আহোম নহয় নেকি? বিতৰ্ক চলি আছে নে নাই বাৰু? মই এতিয়া লগত লৈ আহিছো কোন এনিস টাইমছ সূৰ্য ভূঞাৰ, মই লৈ আহিছো ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাৰ আহোমৰ দিনখন লৈ আহিছো। মই এখন পঢ়িছিলো। তাৰপিছত লাচিত বৰফুকন, সূৰ্য কুমাৰ। জয় হিন্দ, জয় অসম। টেকনিকেল কাম জব আপনি হাত দি ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনায়। আজি এটা ব্যতিক্ৰম ভিডিঅ' লৈ আনিবলৈ বাধ্য হৈ গ'লোঁ, যিহেতু আজিৰ যি ভিডিঅ'বিলাক চালে চাগে প্ৰকৃত যদি অসমীয়া হয়, নৰ্থ ইষ্টৰ হয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনাৰ তেজ গৰম হৈ উঠিব। বহুতো দুখৰ কথা, যিহেতু এটা বৰ্তমান লাচিত বৰফুকন হিন্দু নে আহোম নে বহুতখিনি কণ্ট্ৰভাৰ্চি চলি আছে। সেইবিলাক কৰাতকৈ আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লাচিত বৰফুকনৰ কথা চিন্তা নকৰিলে? আজি দিল্লীত এটা মুহিম চলাইছে, য'ত কি লাচিত বৰফুকন যে ঔৰংজেবক যে পৰাস্ত কৰিছিলে সেই বিষয়ে এটা প্ৰুফ দেখুৱাবলৈ এটা বাধ্য কৰা হৈছে। তো মোগল সাম্ৰাজ্যত ঔৰংজেব যে গোটেই ভাৰততে নিজৰ সেই ৰাজত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, একচেপ্ট অসমত, নৰ্থ ইষ্টত, পূৰ্বোত্তৰ ৰাজ্যত। সেইটো কথা আমি অকল অসমীয়াহে গম পাওঁ, কিন্তু ভাৰতীয় বহুতো লোকে গম নাপায়, য'ত অনলি ছত্ৰপতি শিৱাজীকৰ কথাহে গম পায়। কিয় এনেকৈ হৈছে? ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ত লাচিত বৰফুকনৰ কথা কোনো এটা উল্লেখ নাই, কোনো এটা পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্ট কৰা নাই, অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই। আমাৰ বহুতখিনি অসমীয়া বুদ্ধিজীৱীবিলাক, শিক্ষিত মানুহবিলাকে জাষ্ট ঘৰৰ ভিতৰতে আপোনাৰ শংকৰী সংঘ, আপোনাৰ টাই আহোম, হিন্দু, মুছলিম সেইবিলাক কথাতে লাগি আছে, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ত সেইবিলাক কথা চিন্তা নকৰিলে। বহুতো লজ্জিত বিষয় যে প্ৰতিটো মানুহক সুধিবলগীয়া হৈছে লাচিত বৰফুকন থা থা। এটা নিজকে আপুনি নিজকে অলপ যদি নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰকৃত অসমীয়া বুলি ভাবিছে, তেনে কেনেধৰণৰ অনুভৱ কৰিছে আপুনি নিজকে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত অনুভৱ কৰকচোন। কিমান লাজৰ বিষয়। এনেকৈ আমাৰ অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যি লিজেণ্ডাৰী পাৰ্চনবিলাক হেৰাই যাব, য'ত আপোনাৰ শ্বহীদ জিন্তুকৰ কথা সকলোৱে গম পায়, কিন্তু শ্বহীদৰ দিনা মনত পৰে, য'ত LOC বিক্ৰম বাৰ্তাৰ বহুতখিনি মুভিজ আছে, বহুতখিনি এটা শ্বহীদৰ কথা আজিলৈকে জীয়াই ৰাখিব চেষ্টা কৰিছে আৰু থাকিব। আমাৰ অসমত সেইবিলাক নাই। অতিকৈ লাজৰ বিষয় যে মহাৰাষ্ট্ৰ স্কুল বৰ্ডত য'ত আপোনাৰ ক্লাছ 10ত এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স টেক্সট বুকছত ফৰেষ্টমেন অফ ইণ্ডিয়া আছাম, ইণ্ডিয়াৰ যি ফৰেষ্টৰ আপোনাৰ যাদৱ পায়েঙৰ এটা লেচন স্পেচিয়েলি সিহঁতৰ এটা টেক্সট বুকত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছে, কিন্তু আজিলৈকে অসমৰ এটা চিলেবাছত পাঠ্যক্ৰমত সেইটো দেখিবলৈ পোৱা নাই। কিমান অসমখন এতিয়াও পিছ পৰি আছে বুলি ক'লেও ভুল নহয়। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই এই তিনিজনহে লেজেণ্ডাৰী কথা ক'লোঁ। অসমত বহুতখিনি লেজেণ্ডাৰী পাৰ্চন আছে, সিহঁতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰমবিলাকত সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। সদৌ শেষত মই এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰি বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনাৰ গাত যদি নৰ্থ ইষ্ট পূৰ্বোত্তৰ অসমৰ যদি তেজ আছে, যদি কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। এনেদৰে শ্বেয়াৰ কৰক যে কি প্ৰতিটো অসমীয়াৰ লগতে বহিৰাগত ৰাজ্যৰ লাচিত বৰফুকন আৰু অসমৰ বহুতখিনি লিজেণ্ডাৰীৰ কথা মনত থাকে, আৰু এনেদৰে আমি শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই অসমৰ বহুতখিনি লিজেণ্ডাৰীক জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। তেন্তে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম। The legend of Lachit Borphukan. भारत का वो हिस्सा जहां सूरज सबसे पहले दस्तक देता है, पूर्वोत्तर। 17वीं सदी, जब पूर्वोत्तर की राजधानी हुआ करता था रोंगपुर शिवसागर। मुगल सल्तनत की पैरवी करते हुए मीर जुमला ने राजा जयध्वज सिन्हा को परास्त किया, जिसके पश्चात उनकी अकाल मृत्यु हो गई। समय के गति चक्र के साथ आहूम राज्य के राज सिंहासन पर स्वर्गदेव
यानी राजा चक्रध्वज सिन्हा विराजमान हुए, जिन्होंने अपने राज्य के प्रधानमंत्री आटुन बोरागोहाई, जो कि बेहद चतुर, हर काम में निपुण और एक कूटनीतिज्ञ थे, के साथ मिलकर नए दुर्गों का निर्माण किया। अपनी सेना को संगठित कर उसे और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने एक वीर योद्धा लासित बोरफुकन को अपनी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। जो कि ऊपरी असम के पहले बोरबरुआ मोमाई तामुली बोरबरुआ के बेटे थे। लासित हर तरह के युद्ध कौशल में सामर्थ्य रखते थे। सेनापति नियुक्त करते वक्त राजा चक्रध्वज सिन्हा ने लासित को एक सोने से निर्मित हैंगडांग यानी तलवार उपहार स्वरूप दी। चक्रध्वज सिन्हा ने धीरे धीरे आसपास के सभी राज्यों से मित्रता के संबंध बनाने शुरू कर दिए और मुगलों के साथ की गई संधियों को तोड़ना शुरू कर दिया। यह सुनकर मुगलों के फौजदार फिरोज खान ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए राजा चक्रध्वज सिन्हा पर दबाव बनाना शुरू किया और चेतावनी दी कि अगर तुमने हमारे साथ की गई संधियों को ठुकराने की कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। उधर इन बातों की परवाह किए बगैर प्रधानमंत्री आटुन बोरागोहाई और प्रधान सेनापति लासित बोरफुकन ने मिलकर पहले छोटी छोटी जगहों पर और फिर अगस्त 1667 को गुवाहाटी पर भी फतह हासिल कर ली, जिसके तहत मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। और तब राजा चक्रध्वज सिन्हा ने कहा था, अब मैं सुकून से 2 मुट्ठी चावल खा पाऊंगा। वहीं दिल्ली में बैठे मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब को जब इस बात का पता चला तो वो बौखला गया और 19 दिसंबर 1667 को एक विशाल सेना जिसमें 5000 बंदूकधारी, 1000 से अधिक तोपें, नावों का एक बड़ा बेड़ा, 30,000 पैदल सैनिक, 15,000 तीरंदाज और 18,000 तुर्की घुड़सवार शामिल थे, जिसकी कमान उसने राम सिंह के हाथ में देकर कहा, जाओ और जो भी हमारे सामने सर उठाने का साहस करे उसे कुचल डालो। फरवरी 1669 को राम सिंह रंगामाटी आ गया और अपनी विशाल सेना के साथ उसने फिर से गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया। तब लाचित ने कहा था कि यह बड़े ही दुख की बात है कि मेरे प्रधान सेनापति रहते हुए मेरा देश भयंकर समस्या से जूझ रहा है। मैं अपने राजा और प्रजा को कैसे इस संकट से मुक्त करूं? कैसे मैं अपने पूर्वजों के मान और सम्मान की रक्षा करूं? उसी दौरान राम सिंह ने एक चाल के तहत बाण के जरिए राजा चक्रध्वज सिन्हा को एक पत्र में लिखा कि लाचित ने हमसे गुवाहाटी खाली करने की एवज में 1 लाख रुपए लिए। एक बार तो राजा को लाचित की ईमानदारी पर शक हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री आटुन बोरागोहाई ने समझाया कि लाचित देशभक्त है और यह उनके खिलाफ एक षड्यंत्र मात्र है। लाचित के देशभक्ति की मिसाल इस बात से भी लगाई जा सकती है कि मुगलों पर नजर रखने एवं युद्ध नीति के तहत लाचित ने गुवाहाटी के नजदीक दुर्ग बनाने के काम की जिम्मेदारी अपने मामा को दी थी और कहा कि कल भोर होने से पहले यह दुर्ग तैयार हो जाना चाहिए। मामा ने कहा, आप निश्चिंत होकर आराम करें, सुबह तक काम हो जाएगा। आधी रात को लाचित की बेचैनी बढ़ गई, उनसे रहा नहीं गया और वो दुर्ग का काम देखने चले आए। उन्होंने वहां जाकर देखा तो सारे मजदूर और मामा सो रहे थे। यह देखकर लासित की आंखों में खून उतर आया और उन्होंने गुस्से से मामा को उठाकर कहा, मामा, मैंने आपको कहा था कि काम रात भर में हो जाना चाहिए। दुश्मन हमारी मां की छाती पे खड़ा है, लेकिन बावजूद इसके आप आराम की नींद सो रहे थे। यह देखकर मामा लड़खड़ाते हुए बोला, माफी चाहूंगा, काम करते करते कब नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी मजदूरों से कहकर काम शुरू करवा देता हूं। परंतु लाचित के सब्र का बांध टूट चुका था। गद्दार, मुल्क से बढ़कर मेरा मामा नहीं हो सकता, कहते हुए मामा की गर्दन धड़ से अलग कर दी और रातों रात उस दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसके कारण मजबूर होकर मुगल सेना को जल युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा।
जिसमें कि मुगल सैनिक बहुत कमजोर थे। इधर बहुत तेज बुखार से जूझ रहे लाचित को आटन भोड़ा गुहाई ने कहा कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, इस हालत में तुम युद्ध पर नहीं जा सकते। फिर भी लाचित युद्ध के लिए गए और शुरू हुआ सराय घाट का ऐतिहासिक युद्ध, द बैटल ऑफ सराय घाट। लेकिन क्योंकि लाचित के पास सेना बहुत कम थी, इसलिए लाचित की सेना हारने लगी, युद्ध छोड़कर पीछे हटने लगी। तब लाचित ने अपनी सेना से कहा, हे आसाम के वीर सैनिकों, अगर तुम में से कोई रण छोड़कर जाना चाहता है तो बेशक जाए, लेकिन मेरे राजा ने मुझे दायित्व दिया है, इसलिए जब तक मुझ में प्राण बाकी है मैं लड़ूंगा। अगर मुगल मुझे बंदी बनाकर ले जाना चाहते हैं तो ले जाने दो। तुम जाकर राजा से कह देना कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आखिरी दम तक लड़ा। यह सुनकर लाचित की अगुवाई वाली सेना में तीव्र ऊर्जा का संचार हुआ और परिणाम मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। मुगल सेना पूरी तरह से हार गई। यह देखकर मुगलों के नेतृत्व करने वाले राम सिंह ने नतमस्तक होते हुए कहा, मैंने अपने जीवन काल में अनेकों युद्ध देखे और लड़े। मेरा सा पराक्रमी वीर योद्धा जो जान से ज्यादा अपनी मातृभूमि से प्यार करे, जो युद्ध के हर क्षेत्र में पारंगत हो, आज पहली बार देख रहा हूं। राजा की जय, सलाहकारों की जय, सेनापति की जय, देश की जय। हे लाचित, तुम्हें कोटि कोटि नमन। पूर्वोत्तर के इस वीर योद्धा को भारतीय इतिहास कभी नहीं भुला सकता। सराय घाट युद्ध विजय प्राप्त करने के 1 साल बाद लंबी बीमारी के चलते इस महान योद्धा का स्वर्गवास हो गया। 1672 में स्वर्गदेव राजा उदय आदित्य सिंघा ने जोरहाट से 16 किलोमीटर दूर हुलुमपाड़ा में लाचित मैदान का निर्माण करवाया। लाचित बोरफुकन की वीरता और सराय घाट की लड़ाई में असमिया सेना की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 24 नवंबर को असम राज्य में लाचित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सबसे अच्छे कैडेट को लाचित बोरफुकन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। वतन के लिए अपने प्राणों की परवाह न करने और असम के इतिहास के निर्माण की नींव कहलाए जाने वाले ऐसे महान योद्धा को शत शत प्रणाम।